भगवते देवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। Canto 1, Chapter 8, Text 36. शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तवेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। काफी फेमस श्लोक है ये भी और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणम्। क्या बोल रही है कुंती महारानी? ओ कृष्णा, those who continuously hear, chant and repeat your transcendental activities or take pleasure in others doing so certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. Beautiful shloka. Right? Shranvanti is listening, Gayanti is kirtan, chanting, and Grinanti. Grinanti is Grinanti continuously. Grinanti Abhikshana, taking it continuously. And then is Smaranti, which is remembrance, and Nandanti, very important, take pleasure in others doing it, which will discuss today. All right. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Yes, please. The Supreme Lord Sri Krishna cannot be seen by our present conditional vision. In order to see him, one has to change his present vision by developing a different condition of life full of spontaneous love of Godhead. When Sri Krishna was personally present on the face of the globe, not everyone could see him as the Supreme Personality of Godhead. Materialists like Ravan, Hiranyakashipu, Kamsa, Jarasandha, and Shishupal were highly qualified personalities by acquisition of material assets, but they were unable to appreciate the presence of the Lord. Therefore, even though the Lord may be present before our eyes, it is not possible to see him unless we have the necessary vision. This necessary qualification is developed by the process of devotional service only, beginning with hearing about the Lord from the right sources. The Bhagavad Gita is one of the popular literatures which are generally heard, chanted, repeated, etc., by the people in general. But in spite of such hearing, etc., sometimes it is experienced that the performer of such devotional service does not see the Lord eye to eye. The reason is that the first item, Shravana, is very important. If hearing is from the right sources, it acts very quickly. Generally, people hear from unauthorized persons. Such unauthorized persons may be very learned by academic qualifications, but because they do not follow the principles of devotional service, hearing from them becomes a sheer waste of time. Sometimes the texts are interpreted fashionably to suit their own purposes. Therefore, first one should select a competent and bona fide speaker and then hear from him. When the hearing process is perfect and complete, the other processes become automatically perfect in their own way. There are different transcendental activities of the Lord, and each and every one of them is competent to bestow the desired result, provided the hearing process is perfect. In the Bhagavatam, the activities of the Lord begin from his dealings with the Pandavas. There are many other pastimes of the Lord in connection with his dealings with the Asuras and others. In the 10th canto, the sublime dealings with his conjugal associates, the gopis,
as well as with his married wives at Dwarka are mentioned. Since the Lord is absolute, there is no difference in the transcendental nature of each and every dealing of the Lord. But sometimes people in an unauthorized hearing process take more interest in hearing about his dealings with the gopis. Such an inclination indicates the lusty feelings of the hearer. So, a bona fide speaker of the dealings of the Lord never indulges in such hearings. One must hear from the Lord from the very beginning, as in the Srimad Bhagavatam or any other scriptures that will help the hearer attain perfection by progressive development. One should not, therefore, consider that his dealings with the Pandavas are less important than his dealings with the gopis. We must always remember that the Lord is always transcendental to all mundane attachment. In all the above mentioned dealings of the Lord, he is the hero in all circumstances, and hearing about him or about his devotees or combatants is conducive to spiritual life. It is said that the Vedas and Puranas, etc., are all made to revive our lost relation with him. Hearing of all the scriptures is essential. Hare Krishna. अगेन वेरी अमेजिंग परपोर्ट, प्रभुपाद ने काफी बड़ा परपोर्ट लिखा है इस पे. और this topic is, I mean, every one of us like must have heard many times, right? A number of times, hearing and chanting. So let's make this class more interactive today, ताकि बिकॉज मैं बोलता जाऊंगा तो वो चीज़ इतनी अंदर तक नहीं जाएगी. जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, और हियरिंग एंड चैंटिंग काफ़ी कॉमन टॉपिक है, हम काफ़ी सालों से इस पे सुनते आ रहे हैं, isn't it? तो अब हियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, कोई बताएगा? वाई हियरिंग इज श्रवणम, जो कुंती महारानी ने फर्स्ट चीज बोली है यहाँ पे, श्रवणवंती. तो ये श्रवणवंती, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? बिकॉज प्रभु जी, हियरिंग एक ऐसी है कि हम सोते हैं तब भी वो एक्टिव होता है। वो सेंस वो सेंस एक्टिव होती है, यानी 24/7 वो एक्टिव होती है। करेक्ट. तो उससे उससे ज्यादा वो एक ऐसा रिसोर्स है, ऐसा बोलेंगे कि मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। ऑल राइट. नॉट बैड, नॉट बैड. एक्चुअली मैक्सिमम बेनिफिट तो चैंटिंग का बोलते हैं कि नाम कीर्तन इज द कलयुग का धर्म है. कलयुग युग धर्म बोलते हैं इसको, नाम संकीर्तन को. सो चैंटिंग हैज द मैक्सिमम बेनिफिट इन दैट टर्म्स. बट यू आर राइट कि हियरिंग इज द फर्स्ट स्टेप, बिकॉज अगर सुनोगे ही नहीं तो चैंटिंग पे कैसे आओगे? मान लो मैं आप सड़क, आप 6 साल पहले मैं बैक जाता हूँ, मैं आपको बोलता कि आप मेरे को सड़क पे मिलते हैं, मैं आपको बोलता प्रभु ये लो माला करो, 16 माला करनी है आपको रोज. आप बोलते हैं पागल हो गया, ये कहाँ आ गया मेरे को ये बोलने के लिए. आप नहीं, कभी भी नहीं करते. तो मैं सेम केस विद मी, राइट? मुझे कोई बोलता, मेरे को तो वैसे ही बहुत टाइम लग गया, 6-8 महीने लग गए थे मेरे को तो 16 माला पे आते हुए. तो you won't do that unless you listen. So listening is the first step. Anyone else? Also, Prabhuji, I think it purifies our heart when we listen. Hmm. Correct. प्रभु, हियरिंग से हमारा कनेक्शन जो होता है, रिलेशनशिप होता है, वो बिल्डअप होता है. दैट्स द रीजन, बिकॉज इफ वी कनेक्ट देन ओनली वी गेट द टेस्ट इन चैंटिंग एंड ऑल. सो करेक्ट. तो कनेक्शन बैठता है और हम प्यूरिफाई होते हैं. तो बोलते हैं इन परफेक्ट आंसर्स. वो बोलते हैं जिनसे मैं पढ़ रहा हूँ, जगन्नाथ राम प्रभु, वो बोलते हैं कि जब भी तीर्थ स्थान पे जाओ तो गंगा में डुबकी लगा के नहीं प्यूरिफाई होंगे. वहां पे तीर्थ स्थान पे जा रहे हो तो वहां पर जो महान आत्माएं हैं वहां पर, उनको सुन के अपने आप को प्यूरिफाई करो. ठीक है? तो सुनना इज दैट इम्पोर्टेंट. इट प्यूरिफाइज यू इंटरनली, राइट? एंड सेकंड, जो नेहा माता जी ने बोला कि हियरिंग से आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है कृष्णा से, राइट? कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होता है? पहले मैं फर्स्ट पॉइंट पे ही आता हूँ, रुचिता माता जी वाले पॉइंट पे, कि प्यूरिफाई कैसे होते हो. जैसे मैंने बताया ना कि जब आप धाम पे जाओ, ऑलवेज मेक श्योर कि आप वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पर्सनैलिटीज ऐसी रहती हैं वहाँ पे, राइट? तो उनको सुनना चाहिए. अभी जब मैं वृंदावन गया था, तो यू वोंट बिलीव, वैसे तो मेरा छोटा सा ही ट्रिप था, 2-3 दिन का, 2-2.5 दिन का. बट उनमें भी मैं, ना मैं
प्रेम मंदिर गया ना, मैं बांके बिहारी मंदिर गया ना, बरसाना गया, मंगलवाओं कहीं नहीं गया। आई ओनली अटेंडेड मंगला एंड लिसन टू गुरु माता एंड गुरुदेव लेक्चर्स, दैट्स इट। बिकॉज सुबह मंगला जाते थे, उसके बाद पूरा मंगला का प्रोग्राम, फिर उनके भागवतम, फिर प्रसादम, उसके बाद थक जाते थे, घर आके थोड़ी सी रेस्ट करी, इतने मतलब रूम में आके रेस्ट की, और साथ ही फिर 4 बजे दोबारा, 4 बजे दोबारा लेक्चर, तो अगेन चले गए, फिर 7 बजे आरती। तो वो ये हियरिंग एंड चैंटिंग, दिस इज व्हाट वी यूज टू डू। और नॉट ओनली अस, मतलब जितने भी वहाँ पर और डिसाइपल्स थे। सो दैट इज बड़ा काफी डिफरेंट ट्रिप था वृंदावन का। जनरली जब मैं पहले वृंदावन गया था तो इट वाज लाइक ओके, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, मतलब 10 जगह जब तक नहीं देख लेते तब तक वो नहीं होता था। बट दिस टाइम इट वाज टोटली डिफरेंट बिकॉज आई वाज इन एसोसिएशन ऑफ माय गुरु महाराज एंड द फोकस वाज लिसनिंग एंड चैंटिंग, दैट्स इट। इन्हीं दो चीज़ों पे फोकस था। भागवतम सुनो, मंगला करो, चैंटिंग करो, दैट्स इट। और टाइम का पता ही नहीं चला। मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ और, मतलब शॉपिंग क्या, कुछ कुछ भी और करने का टाइम का पता ही नहीं चला, जस्ट बाय बिकॉज दीज टू थिंग्स take most of the time took most of the time, right? So that and these are the most purifying, correct? Now coming to the second point which Neha Mata ji said, कि जब तक आप किसी के बारे में सुनोगे नहीं, how can you make a relationship? Forget about loving Krishna, कृष्णा से प्यार बढ़ाना है हमें, वो करना है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम। बट जब तक आप किसी के बारे में सुनोगे ही नहीं, हाउ कैन यू इवन नो दैट पर्सन, राइट? इजंट इट? तो जब मान लो आपके सामने भी आ जाए कृष्णा, या जो ये क्रिश्चियंस हैं, किसी और धर्म के लोग जो हैं, उनको इतनी डिस्क्रिप्शन पता है क्या अपने भगवान के बारे में? उनके सामने भी भगवान आ जाए, दे वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज। हम भी नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट अगर उसी फॉर्म में आए जिस फॉर्म में उन्होंने लिखा हुआ है शास्त्रों में कि उनके पैरों पे चिन्ह है, यहाँ पर वो है, मार्क है चेस्ट पे, और 4 हैंडेड फॉर्म में अगर आ जाए, विल बी एबल टू एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कि हाँ दिस इज सम डिवाइन पर्सनैलिटी। इवन दो अगर डायरेक्टली नहीं भी पता चलेगा, बट हमें पता चल जाएगा टू एन एक्सटेंट। बिकॉज क्यों? क्योंकि हमने सुना हुआ है उनके बारे में, मोर पंख है, ऐसा दिखते हैं, शाम शाम सुंदर रूप है, इजंट इट? विल कम टू नो, राइट? अगर हमने सुना ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर फ्लाइट में मेरे साथ सचिन तेंदुलकर बैठ के जा रहे हैं, तो मैं आई विल बी एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, अरे सचिन तेंदुलकर मेरे साथ फ्लाइट में जा रहे हैं, या अमिताभ बच्चन मेरे साथ फ्लाइट में जा रहे हैं। और वही अगर कोई गोरा बैठा होगा, उसको, मतलब मान लो सचिन तेंदुलकर, तो खैर मैंने काफी बड़ी एग्जांपल ले ली, ऐसी कंट्री में जहाँ पे क्रिकेट नहीं है, या मान लो अमिताभ बच्चन है या सलमान खान जा रहा है, तो दे वोंट इवन बॉदर, उनको पता ही नहीं होगा कौन है सलमान खान, इजंट इट? उनके लिए वो एनी अदर नॉर्मल पर्सन होगा। तो सेम वही प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि वहां पर कितने सारे ऐसे मटीरियलिस्ट थे, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस, जरासंध, शिशुपाल, और हाईली क्वालिफाइड पर्सनैलिटी बाय द एक्विजिशन ऑफ मटेरियल एसेट्स। मटेरियल एसेट्स बहुत थे उनके पास, बट स्पिरिचुअल नॉलेज थी जीरो। कृष्णा के बारे में पता ही नहीं था कुछ भी उनको। एज अ रिजल्ट, कृष्णा उनके सामने थे, तब भी उनको, they couldn't appreciate Krishna's presence. Why? Because of lack of listening, isn't it? So that is why listening is very important. तो ओवरऑल ये सारी चीजें, लिसनिंग, हियरिंग, स्मरणम, राइट, नंदनती, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिकॉज दीज थिंग्स एड्रेस द रूट कॉज। जो हमारी प्रॉब्लम है ना इस वर्ल्ड में, मटीरियल अटैचमेंट्स, और यहाँ से निकलने की ये क्या बोलते हैं, रेपिटेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो वी आर नॉट एड्रेसिंग द सिम्टम्स, वी आर डायरेक्टली हिटिंग द रूट कॉज इफ वी आर डूइंग हियरिंग एंड चैंटिंग, राइट? बैठ के अगर कुछ भी नहीं करना ना, मतलब चैंटिंग तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, चैंटिंग 16 माला शुरू शुरू में बहुत मुश्किल है, स्मरणम तो भूल ही जाओ, इजंट इट? बट वो बोलते हैं लिसनिंग तो सबसे इजी है यार, बैठ के सिर्फ सुनना है। जब भक्ति भिक्षा स्टार्ट हुआ था क्या बोला था? बैठ के सुनो। ऋचा माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। बस वही प्रभु, उसमें ही आप जो अभी हेयरिंग का पूछ रहे थे, तो उसमें मैं भी बस वही ऐड करना चाहती थी। ये तो पॉइंट कवर हो ही गया कि हमें प्यूरिफाई होते हैं हम लोग, और भगवान से कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। हम्म। बाकी और जो एक मैं बहुत ज्यादा फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि
जैसे चैंटिंग हमारा बहुत बड़ा फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ में, तो मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि लिसनिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इक्वली तो नहीं बोलूंगी, बट उतना ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि उससे वो नरिशमेंट मिलता है, और उस नरिशमेंट से ही आप चैंटिंग अच्छे से कर पाते हो। और जितनी भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन सबके लिए एक्चुअली मुझे तो लगता है मोटिवेशन हमें लिसनिंग से ही मिलता है, सारा नरिशमेंट हमें लिसनिंग से ही मिलता है और चैंटिंग से। तो दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, बट लिसनिंग इज समथिंग मुझे ऐसा लगता है जो इतनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जितना भगवान की ग्लोरी सुनते हैं, हम उतना ज्यादा भगवान के लिए अट्रैक्ट फील करते हैं, या हम हमारे मन में डिजायर्स आती हैं उनको सर्व करने के। अगर आपको कुछ पता ही नहीं होगा, कुछ कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता होगा, या आप सिर्फ सिंपली चैंटिंग करते रहोगे और लिसनिंग नहीं करोगे, तो वो टेस्ट भी डेवलप नहीं होता, और ना ही हमारे मन में इतनी मतलब प्योर डिजायर्स आती हैं भगवान को सर्व करने की, और ना ही इतना मोटिवेशन फील होता है। मतलब पर्सनली मुझे हाँ, ऐसा लगता है कि किसी भी सर्विस को लेकर, right. तो आई थिंक लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। जैसे आपने कहा कि अगर आप सिर्फ वही करते रहोगे ना, चैंटिंग करते रहोगे, दैट बिकम्स वेरी ड्राई, बहुत ड्राई हो जाएगा। जब आप लिसनिंग करोगे तो दैट विल कॉम्प्लीमेंट, तो आपको एक पता चलता रहेगा कि मैं क्यों कर क्यों रहा हूँ, आपका कोर्स करेक्शन करता रहेगा, क्योंकि लेक्चर डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर सुनोगे, उसमें आपको बताएंगे, कल को नई चीज पता चलेगी। मैं कहता हूँ नई चीज नहीं भी पता चली, स्टिल यू आर लिसनिंग कृष्ण कथा, जैसा आपने कहा कि यू आर लिसनिंग टू द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, दैट इट सेल्फ इज प्यूरिफाइंग। अब ये श्लोक पढ़ा है हमने, ये श्लोक सुना है हमने, दैट इट सेल्फ इज प्यूरिफाइंग। कुछ लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअली कुछ सीखना चाहते हैं कि आज मुझे लेक्चर में कुछ नया मिलना चाहिए, कुछ नया मिलना चाहिए, राइट, दैट इज फाइन। कुछ लोगों को होता है कि यार अम, अम, कि मुझे ये स्पीकर नहीं पसंद, ये स्पीकर पसंद है, इसका लेक्चर पसंद है, इसका नहीं पसंद। बट द एक्चुअल इंटेंशन ऑफ हियरिंग शुड बी, जैसे माता जी आपने कहा कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा, कृष्ण कथा हो रही है, वो इट सेल्फ इज वेरी प्यूरिफाइंग। उससे डजेंट मैटर कि ये वाला स्पीकर है, वो वाला स्पीकर है, ये बोल रहा है, या मुझे ये यहाँ से सीखने को मिल रहा है, या ये मिल रहा है, या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है इसकी। दोज थिंग्स आर गुड, राइट, बट दोज आर द बाय प्रोडक्ट्स। द मेन थिंग इज you are offering, this is again just a offering, this is a sankirtan, and you are offering your just sacrifice to krishna, कि कृष्णा हम आपके लिए ये सुन रहे हैं, so that I can be purified by this listening, right? परीक्षित महाराज ने क्या किया था? परीक्षित महाराज सिर्फ सुना उन्होंने, अब नववेदा भक्ति है, राइट। अब परीक्षित महाराज ने तो चैंटिंग भी नहीं करी, बोला जाए, मतलब एक एक वन सेंस में एग्जांपल अगर दी जाए, ऑल्दो ही वाज ऑलरेडी नित्य सिद्धा, बट इन वन सेंस इफ यू शो व्हाट ही इज ट्राइंग टू शो, उनकी जो पास टाइम है परीक्षित महाराज का, दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट लिसनिंग। सो और वो बोलते भी हैं कि नववेदा भक्ति में यू डोंट हैव टू डू ऑल द नाइन नाइन फॉर्म्स ऑफ भक्ति, है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नो, इवन इफ यू डू वन विद परफेक्शन, दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट इनफ। तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? 7 रात 7 दिन बिना खाए पिए सिर्फ सुना, एंड दैट्स इट, उसी से ही उद्धार हो गया उनका। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की स्टोरी है। वो बंगाल में थे, तो उन्होंने, कोई प्रोफेसर आया उनके पास, काफी इंटेलेक्चुअल, तो बात करने, जो भी स्पिरिचुअल टॉक्स करने, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ना उसको अपने जो वहाँ पे माली है उसके पास लेके गए। बोले कि आपके जो भी क्वेश्चन है ना, ये माली है हमारे यहाँ, इससे पूछ लो। तो वो है ना, यार ये तो माली यहाँ का, ये क्या बताएगा हमें। और एक्चुअली माली ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हुए थे, कुछ नहीं था, ठीक है, बट वो क्या करता था? सिर्फ रोज सुबह गुरु महाराज का लेक्चर अटेंड करता था, दैट्स इट, दैट वाज हिज ओनली क्वालिफिकेशन। और उसके गुरु महाराज ने उसको सेवा दी थी कि तेरी सेवा कृष्ण के लिए है कि तू गार्डन गार्डन मेंटेन करेगा, दैट वाज इट। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ, एंड ही न्यू एवरीथिंग। उसने कहा मुझे भी नहीं पता कैसे, सिर्फ वो दो काम कर रहा था, लिसनिंग और वो सेवा, ठीक है। यू डोंट हैव टू लर्न बिग बिग श्लोकास, डू भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव, यू डोंट हैव टू, राइट, सिंपल लिसनिंग, दैट्स व्हाई कुंती महारानी is saying, certainly, certainly, certainly see your lotus feet just by doing this continuous hearing and chanting, which alone can stop the repetition of birth and death. So Kunti Maharani is saying it's so such a simple process. मैं अपनी अगर एग्जांपल लूँ, पर्सनल एग्जांपल, तो
मेरे इंडिया में सिस्टर्स हैं, ठीक है, मेरी मदर इन लॉ हैं, तो नन ऑफ, ऑब्वियसली इंडिया में हम भी जब कृष्णा कॉन्शियस नहीं थे तो हम भी अनियन गार्लिक और ये सब चीज़ें हम खाते थे, चाय कॉफ़ी, ठीक है, बिना भोग लगाए, ये सब कुछ हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने के बाद शुरू किया। तो तब क्या हुआ, हाँ, फिर क्या हुआ कि जब मैं भक्ति शास्त्री कर रहा था तो मैंने कहा चलो मैं इनको क्लासेस देता हूँ, तो मैंने भगवत गीता की क्लासेस देनी शुरू, और मैं उनसे पहले ही उनको बोलता था कि यार ऐसे ही बोल दिया जैसे फोन पे बात हो रही है, तो अच्छा मत खाओ, हमने खाना छोड़ दिया है। उल्टा वो मुझे गालियां देते थे, अरे यार तू क्या, प्याज खाना कैसे कोई छोड़ सकता है, प्याज थोड़ा कोई छोड़ते हैं खाना, तो मतलब ऐसे ऐसे बोलते थे कि ये तो पागल हो गया ऐसे। और उसके बाद मैंने उन सबको बिठाया, मतलब पहले नहीं माने वो, जब मैंने उनको बोला कि भगवत गीता की क्लासेस हम लेते हैं, देन दे वर रेडीली एग्री। और तो जब उनको बैठ के पढ़ाया मैंने, भगवत गीता पढ़नी शुरू करी, यू वोंट बिलीव, जब भगवत गीता खत्म हुई और मैंने कुछ उनको प्रीचिंग नहीं करी, सिर्फ प्रभुपाद के परपोट पढ़े, और जैसे हम अभी कर रहे हैं राइट, ट्रांसलेशन पढ़ी, परपोट पढ़े, दैट्स इट। बाय द एंड ऑफ 18 चैप्टर्स, all of them, they stopped onion garlic, bringing onion garlic at home। कुछ ने चाय कॉफी भी छोड़ दी, मेरी सास ने वो भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और उल्टा 16 राउंड्स भी करने लग गए। सभी 16 राउंड्स पे नहीं आए हैं, और ये सब कुछ सिर्फ आधे घंटे की डेली क्लास, आधे घंटे की लिसनिंग, दैट इज इट। और कोई उनकी एसोसिएशन नहीं है, कोई उनकी वहाँ पे डिवोटी एसोसिएशन, इस्कॉन, भक्ति वृक्षा, नथिंग, नो सर्विस, नो नथिंग। Just by listening half an hour, I saw such a big transformation, and that made my life so easy, क्योंकि अब जब मैं गया हूँ 3 महीने, मुझे खाने की कोई टेंशन नहीं थी, किसी के घर भी जाके मैं आराम से खा सकता था, क्योंकि none of them were using this। और भोगा लगाना भी शुरू कर दिया, लड्डू गोपाल रख लिया, सिर्फ आधे घंटे की लिसनिंग। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ लिसनिंग। एंड दैट अगेन अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बोनाफाइड सोर्स शिला प्रभुपाद की गीता इज सो प्यूरिफाइंग। This is the impact. So, okay, listening is done. Now coming to the chanting. Why chanting is important? We are calling out for Krishna. We are developing that connection with Krishna. हम्म। And उसी से हम उनके लिए हमारा प्यार बढ़ता जाता है। करेक्ट। प्यार Yeah. बढ़ता है, या अगर हम किसी को बुला रहे हैं तो ऑब्वियसली तो प्यार करते हैं, करेक्ट। हम्म। तो और प्रभु जी, ऐसे हर एक युग में एक धर्म होता है, तो चैंटिंग ये युग धर्म में आया जाएगा। बिकॉज और कोई यज्ञ कर नहीं सकते हम, या हाँ। नॉट प्यूरिफाइड, ब्राह्मण है नहीं यहाँ पे जो हम्म। यज्ञ करेंगे। करेक्ट, एवरीथिंग इज सो इम्प्योर इन कलयुग, वी कांट डू एनीथिंग, करेक्ट। सो नाम संकीर्तन इज द ओनली यज्ञ विच वी कैन डू, करेक्ट, करेक्ट। तो बेसिकली जो चैंटिंग है, हरे कृष्णा महामंत्र, मंत्र, मंत्र की डेफिनेशन अगर संस्कृत में जाओ तो मन, मंत्र इज जो मन को तारे, विच ट्रांसफॉर्म्स यू, मन को, आपके मन को तारे, राइट। तो वो अंदर से वर्क करता है, अंदर से इट वर्क्स, एंड इट गिव्स अस ब्लिस। ऑल्दो अभी इस स्टेज पे हमें वो ब्लिस और वो सब चीजें नहीं दिखेंगी, इस स्टेज पे हमें वही दिखेगा, सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, जो हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन में है ना, क्लेशाग्नि, राइट। सो इस टाइम पे हमें क्या दिखेगा कि मटेरियल, एटलीस्ट वो मटेरियल चीजें हमें उतना इफेक्ट नहीं करेंगी जितना एक नॉन डिवोटी को इफेक्ट करेंगी जो चैंटिंग नहीं कर रहा है एट दिस स्टेज, बट लेटर ऑन इट विल स्टार्ट गिविंग अस ब्लिस एज वेल, राइट। सो चैंटिंग, और होगा क्या, और हम चैंटिंग करते क्यों हैं, कि कृष्णा के पास जाने के लिए हम यही बोलते हैं ना कि कृष्णा का प्रेम मिल जाएगा, कृष्णा के पास चलेंगे, बट दैट्स नॉट द केस। Chanting is the means as well as the goal as well। तो मीन्स तो है ही कृष्णा को अटेन करने का, बट ऐसा नहीं है कि एक बार कृष्णा मिल गया तो चलो जी काम हो गया, चैंटिंग करवा करवा के कृष्णा तुमने थका दिया, 16 राउंड बड़े मुश्किल से करवा करते हैं हमें। नो, दैट्स नॉट द स्टेज वी विच वी आर लुकिंग फॉर। वो 16 माला खत्म ही नहीं होनी चाहिए। भगवत गीता के 18 चैप्टर है भगवत गीता में, उसमें 9th चैप्टर आता है बिल्कुल मिडल में, राइट, भक्ति योगा। आपने तो पढ़ा होगा, अपने तो पढ़ा है ना। भक्ति योगा के जो मिडल के 6 चैप्टर हैं वो भक्ति योगा के हैं, उसमें भी 9 जो है वो सेंटर में आता है। और उसके भी सेंटर में 9.14 इफ यू सी इज द की वर्स, जिसमें क्या बोल रहे हैं वो, सततम कीर्तयन्तो माम
यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते सततम कीर्तयन्तो माम। कृष्णा क्या बोल रही हैं? नॉट 16 राउंड्स, सॉरी। सततम, ऑलवेज, कीर्तयन्तो, किसका कीर्तन करना है? माम, मेरा। यतन्तश्च दृढ़व्रता, पूरी दृढ़व्रता, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ करना है, राइट? दिस इज व्हाट कृष्णा इज सेइंग, दिस इज द जिस्ट ऑफ भगवद गीता, इन वन वे यू कैन से। कृष्णा ने बिल्कुल मिडल में जाके बोल दिया है कि भैया चैंटिंग करनी है आपको, दैट्स इट, नथिंग एल्स, नॉट ओनली चैंटिंग, राइट? नॉट ओनली इन एक्चुअली इन भगवत गीता, भागवतम के, भागवतम का लास्ट वर्स, यू कैन इमेजिन, राइट? ये लास्ट वर्स भागवतम का कितना इंपॉर्टेंट होगा, isn't it? तो अगर मैं भागवतम का लास्ट वर्स आपको खोल के दिखाऊं, पूरा श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो के लास्ट चैप्टर का लास्ट वर्स, उसमें भी एक तरह से बंदा कंक्लूजन जिसको बोलते हैं ना, एंड में कंक्लूजन दिया है। क्या क्या कंक्लूजन दिया? 23rd, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस तम नमामि हरिम परम। I offer my obeisances unto the Supreme Lord Hari, the congregational chanting of whose holy name destroy all sinful reactions, and offering the obeisances unto whom relieves all the material suffering. Again, end में conclusion, भागवतम की conclusion, concluding verse you can say, नाम संकीर्तनम यस्य. So नाम संकीर्तन is the what you whatever you wanna call it is your dharma or whatever. So that is the importance of, again, why I'm showing you these all verses. I am stating verses just to reiterate the importance of chanting, and that's not like something which like कोई मन गढ़ंत है, speculation नहीं है, right? और श्रीला प्रभुपाद जब चैंटिंग करते थे तो चैंटिंग करते करते वो एक श्लोक बीच में बोलते थे, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और फिर वो बीच में बोलते थे हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। सो ये किसने लिखा था ये श्लोका? किसी को याद है? ये किस कहाँ से आई? शंकराचार्य। शंकराचार्य ने पूरी मायावाद फिलॉसफी, इन्होंने, शंकराचार्य कौन थे? शिव जी, स्वयं शिव जी थे। तो जब लॉर्ड बुद्धा अपीयर्ड, उस टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे स्लॉटर्स हो रहे थे। तो तब क्या हुआ कि लॉर्ड बुद्धा ने आके वो सब स्लॉटरिंग बंद करी जो कि वेदों में लिखी हुई थी, और उन्होंने वेदों को कम्प्लीटली वैनिश कर दिया। अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने ये आके एस्टेब्लिश कर दिया ताकि जो लोग थे वो स्लॉटरिंग करनी बंद कर दें। उसके बाद क्या हुआ, वेद सारे चले गए। देन यू हैव टू री एस्टेब्लिश द वेदास। तो वो जब री एस्टेब्लिश करने के लिए वेदास, शंकराचार्य केम एंड ही प्रोपिगेटेड ऑल द मायावाद फिलोसफी। देन इन द एंड, सब कुछ करने के बाद इन द एंड ही रोट दिस थिंग, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो ही इज स्ट्रेसिंग, व्हेन यू आर स्ट्रेसिंग समथिंग यू रिपीट इट। व्हाट यू आर रिपीटिंग? के हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही है, जो कि और किसी की कोई गति नहीं है। कलो नास्ति है नास्ति, कलयुग में इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, राइट? और अगेन जो, हाँ, जो ऋचा माता जी बोल रहे थे कि यू हियर द ग्लोरीज, राइट? और उसमें भी भगवत गीता में भी श्लोक आता है ना कि कृष्णा की ग्लोरीज गाने से क्या होता है? मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथायंतश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो लोग मच्चित्ता, मेरे में जिनका चित्त लगा हुआ है, कथायंतश्च माम नित्याम, ऑलवेज दे सिंग ग्लोरीज अबाउट मी, कथायंतश्च माम नित्याम तुष्यन्ति च रमन्ति च, they always are fully satisfied. तुष्यन्ति means always fully satisfied, and ramanti means always blissful. So this is the point of chanting, that if you chant, you will be always blissful, and it is not just the means, it is the goal as well. इस चैंटिंग से हमें बोर नहीं होना है, चैंटिंग हमें करते ही रहना है। ऑलवेज यू नीड टू सिंग द ग्लोरीज ऑफ कृष्णा। So next is Nandanti. Again, very beautiful
ये हमने पहले नहीं सुना होगा, राइट? श्रवणम कीर्तनम तो वेरी कॉमन कॉमन है, हमने पहले सुना होगा। दिस नंदंती इज कहाँ लिखा है नंदंती? हाँ, सॉरी, कौन सी यहाँ पर नंदंती, टेक प्लेजर, इज टेकिंग प्लेजर, क्या क्या बोला वो? और टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो बोल रहे हैं, अच्छा भाई आ जाओ भक्ति वृक्षा में, एसएसआर कर लो, हियरिंग कर लो। नो सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके। अच्छा चैंटिंग कर लो। न, अरे चैंटिंग कैसे करेंगे, सॉरी इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा चैंटिंग भी नहीं कर सकते, स्मरणम कर लो। नहीं, अरे स्मरण, नो नो नो, हमें तो और चीजों का स्मरण करना है, हम कृष्णा का स्मरण नहीं कर सकते। अच्छा कुछ भी नहीं कर सकते, तो कुंती महारानी क्या बोल रही है? टेक प्लेजर्स, प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो, जो दूसरे लोग कर रहे हैं एटलीस्ट उनको अप्रिशिएट ही कर दो, उन उनमें ही अपने आप को प्लेजर करवा दो। प्लेजर, टेक प्लेजर इन अदर्स डूइंग सो मीन्स अप्रिशिएट देम, उनका गुणगान कर दो। दैट इज इजी, राइट? कि अगर कोई भक्ति कर रहा है, तुम नहीं भी कर रहे हो, अगर कोई कर रहा है तो एटलीस्ट डोंट पुल हिम डाउन यार। कोई अगर अच्छी भक्ति कर रहा है, उसकी प्रेज कर दो। अगर आपने वो कर दी ना, तब भी क्या होगा? बर्थ एंड डेथ से भव प्रवाह, इस यहाँ से बर्थ एंड डेथ के इससे साइकिल से आप निकल जाओगे, जस्ट बाय डूइंग प्रेज। प्रेज किसकी करनी है? द वन हु आर डूइंग भक्ति। और ये कौन करता है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ये चीज कौन करता है? राधा रानी। राधा रानी क्या बोलती है? अरे वो देखो कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है, प्लीज उसको ले लो ना। इस ये भी कर रहा है, इसको भी ले लो, ये भी कर रहा है, इसको भी ले लो। दिस इज व्हाट, दिस इज द ड्यूटी ऑफ राधा रानी एंड चैतन्य महाप्रभु एज वेल, राइट, हु केम इन द फॉर्म ऑफ राधा रानी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग ग्लोरिफिकेशन। एंड इसके ऑपोजिट क्या है? ईर्ष्या। अगर कोई भक्ति में बहुत अच्छा कर रहा है, अगर हमारा पीयर है या हमसे जूनियर है, अगर वो हमसे ऊपर आ रहा है, तो कई बार क्या होता है? जेलसी, which is exactly opposite of what Kunti Maharani is saying here. Or rather what you should do, you should glorify him or her कि यार देखो कितना अच्छा काम कर रही है, मेरे से बाद भक्ति में आया था और देखो कहाँ निकल गया। रादर हम क्या होती है? जेलसी होती है, अरे सीनियर तो मैं हूँ, ये क्यों नहीं कर रहा, isn't it? और उसका उल्टा इम्पैक्ट होता है। आई थिंक, मुझे पता नहीं, शायद विष्णु प्रेषर प्रभु ने ये स्टोरी सुनाई थी या मैंने कहीं से तो ये सुनी थी अपने सर्कल में ही, आई डोंट नो, बट आई जस्ट लेट मी नो अगर किसी और को आती होगी तो। एक राजा ने ब्राह्मणों, ब्रह्मभोज रखा, ब्राह्मणों को खाना खिलाने का उसने वो रखा, प्रसादम खिलाया उसने सबको। तो बाहर बैठे थे तो बहुत सारे ब्राह्मण। अब क्या हुआ, वहां से एक ईगल जा रही थी, और ईगल के हाथ में था, ईगल के पंजे में वो था, स्नेक था। स्नेक पकड़ा था उसने खाने के लिए। अब वो उससे ऊपर उड़ती हुई जा रही थी, खाने के ऊपर से जब वो निकली, तो क्योंकि उसने बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, तो सांप के मुंह से ना जहर निकल रहा था। तो वो जहर निकला और ब्राह्मण की प्लेट में आके गिर गया, एक ब्राह्मण की प्लेट में आके गिर गया, और उसने वो खा लिया, उसको नहीं पता चला, और वो वहीं पर मर गया। तो सब जगह बात ये फैल गई कि ऐसा ऐसा राजा ने, मतलब जो भी हुआ राजा के वहां पे। तो ऐसे ही चलो हो गया। फिर एक दो महीने बाद क्या हुआ कि, हाँ, तो उसके बाद वो सब वहां पर पहुंचे यमलोक के बाद, यमराज के पास। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा जी अब किसकी गलती करें हम? वो ब्राह्मण जो मरा है उसका ब्लेम हम किसको दें? उसकी सजा तो मिलेगी ना, ब्राह्मण मरा है, तो सजा किसको दें? राजा को दें, उसने खाना खिलाया है यहाँ ऊपर में बैठ के। पर नहीं यार, राजा का उसमें क्या, राजा का तो कुछ लिंक नहीं है। फिर वो बोलते हैं अच्छा चलो फिर सांप को दे दो, सांप ने वहां पे अपना जहर डाला है। तो बोले यार सांप तो बेचारा वैसे ही उसके अंदर था, तो उसमें सांप की क्या गलती है? तो बोलते हैं अच्छा फिर वो जो ईगल जा रही थी ईगल को दे दो, क्योंकि ईगल ईगल ने उसको पकड़ा हुआ था। तो बोलते हैं ईगल ने थोड़ा ना उसमें गिराया है। तो वो कंफ्यूज यमराज कि किसको दें, तीनों में से कोई भी एग्जैक्ट कल्प्रिट नहीं बन रहा है अब उस ब्राह्मण की हत्या का। तो फिर उसने क्या किया, यमराज ने एक बुढ़िया को मृत्यु दंड दे दी उसके उसमें। तो सबने पूछा कि यार बुढ़िया को क्यों दे दिया? वो बोला, कहता बुढ़िया को इसलिए दिया क्योंकि कुछ एक महीने बाद वहां पर और ब्राह्मण आए,
तो उन ब्राह्मण ने पूछा कि राजमहल कहाँ है, उन्होंने रास्ता पूछा राजमहल का। तो वो बोलती अच्छा अच्छा वो वाला राजा जिसने ब्राह्मण को मार दिया था। चलो जी, उसने क्या किया, निंदा कर दी उनकी, एक वैष्णव की निंदा कर दी उसने, उन्होंने उस पे वो बोल दिया। और यमराज ने क्या देखा कि कोई नहीं है, तो उस मृत्यु का दंड उसको दे दिया। सो दैट इज द पॉइंट हियर इज कि जो दोष दृष्टि रखता है, राइट, तो वो उसको सजा मिलती है। सो नेवर कीप दैट दोष दृष्टि, राइट। तो जब हम किसी की भक्ति में दोष दृष्टि करते हैं तो उसका रिजल्ट्स आर वेरी बैड। एंड ऑपोजिट टू दैट, अगर हम उसका गुणगान करते हैं, सो वी विल ऑल्सो फ्लरिश इवन विदाउट डूइंग एनीथिंग। अगर हम कुछ नहीं भी कर रहे हैं ना, तब भी बोलते हैं वैकुंठा में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, पर जैसी तुलसी महारानी आती है, सब फ्लावर्स जो हैं वो पीछे हट जाते हैं। बोलते हैं कि तुलसी महारानी बिकॉज कृष्णा की प्रिय है, तुलसी कृष्णा प्रिया सी नमो नमो। तुलसी कृष्णा की प्रिय है, और तुलसी ने बहुत तपस्या भी करी है, तब उसको वो पोजीशन मिली है। तो पर फूलों की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है वहां पे रहने की, दे हैव ओनली वन क्वालिफिकेशन, के उन्होंने तुलसी महारानी को ग्लोरीफाई किया, उनको आगे आने दिया, बिकॉज शी वॉज मोर डिजर्विंग। तो द ओनली क्वालिफिकेशन ऑफ फ्लावर्स देयर इज नंदंती, राइट। दे टेक प्लेजर इन ग्लोरीफाइंग अदर डिवोटीज, जो भक्ति कर रहे हैं, उनकी भक्ति की ग्लोरिफिकेशन, राइट। ऐसी बहुत सारी और शास्त्रों में एग्जाम्पल हैं। नारद मुनि ने प्रचेतास को ध्रुव महाराज की भक्ति के बारे में बताया कि ध्रुव महाराज बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। और ध्रुव महाराज कौन थे, नारद मुनि के शिष्य, राइट। नारद मुनि ने उनको बोला कि आप जाके ये करो, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय एंड देन यू विल अचीव लॉर्ड। और नारद मुनि क्या कर रहे हैं, अपने शिष्य की बड़ाई कर रहे हैं, किसके आगे, प्रचेतास के आगे। सेम युधिष्ठिर महाराज के आगे वो किसकी कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज की, राइट। और प्रहलाद महाराज को अगेन उन्होंने ही बनाया था। वो तो छोड़ो, श्रीला प्रभुपाद ने फोर्थ कैंटो में परपोर्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्योर डिवोटी इस्कॉन में आ जाता है तो मेरा उद्धार हो जाए। कैन यू इमेजिन, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरा उद्धार हो जाए। ही इज शक्ति आवेश अवतार, इनका ऑलरेडी प्रोफेसी है उनके भागवतम में, हर जगह में, कि ऐसा मोर सेनापति विल कम एंड लिबरेट दिस वर्ल्ड। वो बोल रहे हैं कि इस्कॉन में कोई और प्योर डिवोटी अगर आ जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। तो दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ नंदनती, इजंट इट। सो अपने द पॉइंट हियर इज कि अपने फ्रेंड से, अपने सर्कल में, अपनी कॉन्ग्रीगेशन में एनवी छोड़ के उनकी भक्ति में जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उसकी हमें गुणगान करना चाहिए, ना कि उनसे जलना चाहिए, ना कि उनसे ईर्ष्या करनी चाहिए, ना कि उनको पुल डाउन, उनको नीचे उतारना चाहिए क्रैब मेंटेलिटी की तरह, isn't it? और कृष्ण भगवान ने स्वयं इसकी एग्जाम्पल दी। कब दी, जब अर्जुन ने जब माया दानव माया दानव वाली स्टोरी पता है ना, जब उसने पांडव प्रस्थ में वो कर रहा था, तो माया दानव गया, तो कृष्णा ने उस पर सुदर्शन चक्र छोड़ा और अर्जुन ने आग लगा दी वहां पर। तो वो बेचारा घबरा गया कि मैं कहाँ जाऊं। तो रादर देन टेकिंग शेल्टर ऑफ कृष्णा, वो अर्जुन के पास आया, और अर्जुन ने कहा, उसको अभय दान दिया। तो और मायावान ने बोला कि अच्छा बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। अर्जुन कहता नो इट्स ओके, यू जस्ट गो फ्रॉम हियर। बट कृष्णा बिल्कुल साथ में खड़े थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम इंद्रप्रस्थ बना लो यहाँ पर। बट कृष्णा वॉज नॉट जेलस, अगर ही वॉज हैप्पी, तभी उन्होंने उसको दिया ना काम। अगर वो जेलस होते, वो बोलते कि यार यार मैं यहाँ पर खड़ा हूँ सीनियर, आई एम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तुम जाके अर्जुन के उसमें पाँव में पड़ रहे हो। रादर ही वॉज हैप्पी कि उसने मेरे डिवोटी के पाँव पकड़े रादर देन माई सेल्फ, राइट। सो दिस शुड बी द एटीट्यूड। तो हमारा शुरू शुरू में तो क्या है कि हमारा बैरोमीटर, कितनी अच्छी चैंटिंग, कितनी अच्छी हियरिंग, देन अवर बैरोमीटर शुड बी कि दूसरे कितनी अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। इस्कॉन में भी ऐसे बहुत सारे, राधानाथ स्वामी महाराज का जो है गौर गोपाल दास, ही बिकेम, वो बता रहे थे प्रभु कि वो दोनों एयरपोर्ट पे थे, राधानाथ स्वामी महाराज और गौर गोपाल दास, तो सब लोग आ गए। तो
क्योंकि गौर गोपाल दास इज वेरी फेमस, राइट। अब राधानाथ स्वामी महाराज को हर कोई नहीं जानता है, जबकि गौर गोपाल दास को जानते हैं इन प्रभु को। तो क्या हुआ, सब लोग आ गए सेल्फीज लेने वहां पे एयरपोर्ट पे, एंड ही वॉज गेटिंग एम्बेरेस्ड कि यार मेरे गुरु महाराज सामने हैं और लोग मेरे को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, मेरे से सेल्फी ले रहे हैं। तो वो बोल रहे, कहते माय गुरु महाराज इज हियर। तो ही सेड, तो लोग बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, उनको भी ले आओ सेल्फी में, उनके साथ भी ले लेते हैं। एंड राधानाथ स्वामी महाराज वाज लाइक स्माइलिंग, ही वाज हैप्पी। तो एक गुरु खुश होता है, जो एक जेन्युइन गुरु होता है वो खुश होता है जब उसका भक्त, उसका शिष्य जो है वो उनसे ज्यादा प्रोग्रेस कर ले, उनसे ज्यादा फेम पाए। तो जब गुरु वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं स्कॉन में और हर जगह, कृष्ण खुद एग्जाम्पल वो सेट कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में वो एग्जाम्पल है। सो वी शुड फॉलो दैट rather than being jealous of our fellow mates or our juniors, so-called juniors, if you want to say juniors. Yeah. All right. So that was the point. अभी है 15 मिनट, so we'll discuss the last thing as well here, जिसमें वो बोल रहे हैं कि बोनाफाइड होना चाहिए स्पीकर। तो इस पे आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू लिसन टू गौरांग प्रभुज लेक्चर, सेंट्स एंड स्विंडलर्स। अभी वो 3 महीने पहले ही आया यूट्यूब पे, सेंट्स एंड स्विंडलर्स। गूगल करोगे, यूट्यूब पे करोगे तो उसके 2 पार्ट्स में है वो लेक्चर। मैं थोड़ा सा उसका ब्रीफिंग कर देता हूँ, अगर किसी के पास टाइम नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। उसमें ही इज क्लियरली डीमार्केटिंग कि कौन स्विंडलर है और कौन सेंट है, इससे बचना चाहिए कैसे गुरुओं से, और किन किन के पास जाना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले वो एक स्विंडलर की डेफिनेशन देते हैं, वो बोलते हैं कि वो स्विंडलर वो बंदा है जो कि डिप्राइव्स अदर्स फ्रॉम देयर मटेरियल पोजेशंस और मनी, who deprives others from their possession or money, right? That is a swindler. अब ये चीज तो बाय डिसेप्शन, एक्चुअली डिसेप्शन, धोखे से, ठीक है। अब ये डिसेप्शन तो मैजिशियन भी करता है, राइट। तो जब मैजिशियन करता है, ऐसे 100 का नोट निकालता है, कुछ करता है, तो वो अपना ही नोट निकाल रहा होता है जब वो जाके, और लोगों को मजा आ रहा होता है, क्योंकि उनको पता है कि यार ये कर रहा है। अगर वही मैजिशियन सबका जा जाके 100 का नोट निकालने लग जाए, तो उसको पकड़ लेंगे लोग, इजंट इट, सबकी जेब में से अगर वो निकालने लग जाए। सो दैट इज द पॉइंट, बट ही इज डूइंग इट एज अ ट्रिक, राइट, एंड ही इज डूइंग विद हिज ओन स्टफ, नॉट विद अदर्स। और ये क्यों होते हैं ये स्विंडलर्स, वो बता रहे थे प्रभु कि इट्स अ सिंपल केस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ऐसे लोगों की डिमांड है, तभी ऐसे लोग आ रहे हैं, ठीक है? ऐसे लोगों की डिमांड कौन से लोग करते हैं? जिनको चाहिए कि हाँ हमें तो एक सोशल स्टेटस चाहिए होता है, या अपने आप को पायस दिखाना होता है। इंडिया में वो भागवतम सप्ताह खुलता है ना, वो इसीलिए खोलते हैं वो भागवतम सप्ताह, कि चलो जो भी हमने पाप वगैरह किए हो, उस वो सारी पाप की कमाई डालो इसमें, और अपने आप को प्योरीफाई कर लो, पायस क्रेडिट्स भी मिल जाएंगे। और भक्ति भी हो जाएगी, और सोसाइटी में हमारा जो है वो नाम भी हो जाएगा कि देखो भाई मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैंने तो भागवतम सप्ताह रखवाया है, राइट। और सोशली भी तुम रिस्पेक्ट रिस्पेक्टफुली लोग तुम्हें देखेंगे, ये बहुत बड़े भक्त हैं देखो, इजंट इट। वरान प्रभु एक चीज स्टोरी सुना रहे थे, कहते वो ऐसी भागवतम सप्ताह में इंडिया में तो कर रहे हैं प्रोफेशनल्स भागवतम रिसाइटर्स। एक लेडी रोई जा रही है, जैसे ही वो 7 दिन आई, वो 7 दिन रोई वो। तो उस 7 दिन के बाद वो जो प्रोफेशनल रिसाइटर था वो उसके पास गया, कहता माता जी आपको आपको क्या बहुत भाव आया क्या, जो मैंने भागवतम करी, आपको बहुत मजा आया एकदम? तो कहती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो कहता आप रोए क्यों? तो कहती मैं रोती इसलिए थी रोज, कहती मेरी बकरी थी, कहती वो बकरी मर गई, और आपकी ये जो गोटी देख के ना, यहाँ पे दाढ़ी है जो आपकी, उससे वो उससे मुझे मेरी बकरी याद आती थी। कहती इसलिए मैं रोती थी। राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बोलने वाले भी वैसे और सुनने वाले भी वैसे। हम्म, क्या बोलते हैं उसको? लोभी गुरु, हाँ नहीं लोभी चेला है ना, क्या बोलते हैं? क्या था लोभी चेला दोनों का साथ में ठेलम ठेला। लालची गुरु लोभी चेला दोनों का साथ में ठेलम ठेला, राइट।
तो ऐसे उनसे बचना चाहिए। सेकंड, सेकंड क्या है, इट्स वेरी चीप। अब भक्ति को क्या कर रखा है, चीप कर रखा है, डाउनग्रेड कर रखा है। आपको इस्कॉन में आता है और आगे देखता है, अच्छा, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, सॉरी, चला जाता है वो वहीं से। वो जैसे ही बाहर जाता है, इतने सारे और उसको पकड़ लेते हैं। ऋत्विक हो गए, ये सहजिया हो गए, ये आके, अच्छा कुछ नहीं करना आपको, हम आपको सीधा भाव भक्ति बताएंगे, आओ, ये आपको कुछ साधना भक्ति करनी नहीं है, हम आपको सीधा रागानुगा भक्ति पे लेके जाएंगे, सीधा हम आपको आपका स्वरूप सिद्धि बताएंगे, आपको आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन हमारे महाराज हैं वो बता देते हैं, आपको देख के बता देंगे वो। राइट, वृंदावन में बहुत सारे ऐसे घूम रहे हैं, सहजियाज, दोज आर कॉल्ड सहजियाज। राइट, सहजियाज मीन्स who take it cheaply, सहज means easy, cheap, who take it भक्ति very cheaply, right। उसमें गौरांग प्रभु बताते हैं कि अगर किसी के पास 10 रुपए हैं और वो 5 स्टार में चला गया है, 5 स्टार में जाके वो 10 रुपए जेब में है, और वो 5 स्टार में जाके मेन्यू खोल के देखता है कि उसमें तो चाय भी जो है वो 100 रुपए की है, तो वो क्या होगा, वहीं से वापस आ जाएगा। तो सेम वे, अगर हमारी भक्ति सुकृति जो हमारे प्रीवियस कर्मा है उसमें है ही नहीं, हम 10 रुपए लेके आए हैं, तो ऐसे लोग फर्स्ट ऑफ ऑल भक्ति वृक्षा में आएंगे ही नहीं। दे विल से नमस्कार, थैंक यू, हरि बोल, राइट। फिर उन्होंने बोला कि किसी के पास 100 रुपए हैं, तो वो 5 स्टार में जाएगा, और एटलीस्ट वो चाय देखेगा कि हाँ चाय तो पी सकता है, पर वो लंच नहीं कर सकेगा। अगर उसको बहुत अच्छा लंच करना है, ही वोंट बी एबल टू डू। तो ऐसे लोग क्या है कि भक्ति वृक्षा में आएंगे, देखेंगे कि हाँ हो रहा है, थोड़ा सुनेंगे, पर जैसे ही वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होने लगेंगे लेवल्स, जैसे लेवल ऊपर जाएगा, नो मीट ईटिंग, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, 16 राउंड, विल से हरि बोल। देन कम्स द नेक्स्ट वन, इनके पास 1000 रुपया है और वो जाके वहां पर लंच कर सकते हैं। दोज पीपल ओनली सस्टेन इन इस्कॉन, राइट। सो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट एंड स्विंडलर। सेंट कभी भी अपनी क्वालिटीज पे, अपनी स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, वेरा जो स्विंडलर होता है वो आपके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेगा कि अच्छा एटलीस्ट बंदा रुके तो सही। राइट, सो दिस इज व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग कि ऐसे लोगों से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, फर्स्ट वन शुड सेलेक्ट अ कॉम्पिटेंट एंड बोनाफाइड स्पीकर। अगर आपका बोनाफाइड प्रोसेस ही नहीं है, अगर लीनिएज में आ ही नहीं रहे हो, तो सुनते जाओ सुनते जाओ, कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा आप गलत रास्ते पे जाओगे। और मैंने बहुत सारे देखे हैं ऐसे। अ, मेरी सिस्टर की, आगे मेरे ब्रदर इन लॉ की एक्चुअली मामी थी, तो शी वॉज इन टू इस्कॉन एंड बहुत अच्छा कर रही थी, एंड एट अ गुड एज, मतलब वो खुद 30 साल इस्कॉन में रहने के बाद वो वृंदावन के किसी इधर उधर ये ऋत्विक या सहजिया के पास डिग्रेस। वेरी पेनफुल, वेरी वेरी डेंजरस, बट दैट्स वाई वी शुड नो द डिफरेंस कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। 30 साल बाद कोई अगर कॉल कर सकता है, वी कैन वेल इमेजिन हमारा क्या हाल होगा। एक इट्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इतना यहाँ पर थोड़ा सा हिला इधर से उधर। ऑलराइट, सो विल स्टॉप हियर। तो मैं की लेसन आज के बताता हूँ। तो हमने देखा था हियरिंग और चैंटिंग की इंपॉर्टेंस, दे बोथ हैव देयर ओन प्लेस। सो हियरिंग इज इम्पॉर्टेंट, चैंटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। हमने बहुत सारे वर्सेस देखे। देन हमने देखा जो की टेक अवे एक जो मेरे लिए था इसमें, कि नंदंती, दैट इज समथिंग विच आई डिड नॉट नो, कि अगर कोई भक्ति कर रहा है हमें उसको और ऊपर उठाना चाहिए, ना कि उसको उसकी लेग पुल करके उसको नीचे करना चाहिए, एंड रादर वी शुड ग्लोरीफाई हिम, एंड इफ वी डू दैट इट इज इजी। कुंती महारानी बोल रही है इट इज इजी, जस्ट डू नंदंती एंड यू डोंट हैव टू डू। हमने तुलसी महारानी की एग्जांपल दी और फ्लावर्स की एग्जांपल देखी, हमने जस्ट दे ग्लोरिफाइड तुलसी महारानी एंड दैट्स व्हाई दे आर इन वैकुंठा, right? And the last big thing is which we talked about is sorry, कि हाँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्स एंड स्विंडलर्स हमें पता होना चाहिए, इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि हम जहाँ जा रहे हैं या हम किसके लेक्चर सुन रहे हैं। तभी बेस्ट है, इन सब चीज़ों में ना पढ़ने से बेटर है कि आप सिर्फ इस्कॉन के ही लेक्चर सुनो। समंदर है पूरा, इस्कॉन डिजायर ट्री पे पूरा समंदर है, तो डोंट
listen outside lectures. If you are listening, you should have that sense of discrimination that where it is digressing. It will be very subtle, but it can take you somewhere else without you knowing about it. All right. Any questions, comments, corrections? Say. So, all right. हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामने भक्तगण की जय। हरे कृष्णा।